وعدے بڑے، دعوے کھوکھلے، مسائل میں گھرے کراچی کے ساتھ مذاق۔ 162 ارب روپے کے بجائے وفاقی حکومت کا 1 ارب 30 کروڑ روپے فنڈ کا اعلان۔ 40 کروڑ گرین لائن، 43 کروڑ منگو پیر روڈ کے لیے جاری۔ بقیہ رقم سخی حسن فلائی اوور کے KDH چورنگی اور نشتر روڈ کی تعمیر پر استعمال ہوگا۔ کراچی والوں نے وفاقی فنڈ کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا۔ اس الیکشن میں جس واضح مینڈیٹ مجھے ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس حکومت کو آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے تو نہیں گرا سکتے ہیں، اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کے مسائل پر سیاست زور پکڑنے لگی۔ آرٹیکل 149 پر لفظی گولہ باری جاری۔ بلاول نے آرٹیکل کو سندھ پر قبضے کی سازش قرار دے دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں آرٹیکل 149 کو شوشہ ہے۔ کراچی والوں کو تسلی اور جھوٹی امید دلائی گئی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا کراچی کو دارالحکومت بنانے کا مطالبہ۔ یہ شہر جب تک ایک سینٹر آف کمانڈ نہیں ہوگا، یہ شہر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ساتھ بیٹھیں۔ مسائل تو سب سامنے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں۔ اس سے نکلنا ہوگا بڑوں کو۔ کراچی کے لوگوں کو کمیٹی اور اجلاس نہیں، فنڈ چاہیے، سندھ دے یا وفاق۔ میئر کراچی وسیم اختر نے شہر قائد کے مسائل کا حل بتا دیا۔ آج نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب تک کراچی سینٹر آف کمانڈ نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ساتھ بیٹھنے کا مطالبہ۔ 149 میں خورشید شاہ صاحب نے جو کہا ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ کراچی کو سندھ سے ہم الگ ہونے نہیں دیں گے۔ نیب کے انڈر اگر کسی کو کوئی ایسا چارج فریم کیا جائے یا ایسا کوئی الزام ہو جس کی مالیت 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو، تو پھر اس کو صرف اور صرف C کلاس ملے گی۔ کراچی کو سندھ سے الگ نہیں ہونے دیں گے، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، نئے قوانین لا رہے ہیں، 50 کروڑ سے بڑی کرپشن کے ملزمان کو C کلاس دی جائے گی۔ نئے قوانین سے ججز، وکلاء اور عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کے بہادر جوان وطن کی مٹی پر قربان۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کے 2 واقعات، 4 سیکیورٹی اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ شمالی وزیرستان میں پیٹرولنگ کے دوران حملہ، سپاہی اختر حسین شہید۔ جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دیر میں سرحد پار سے سیکیورٹی فورسز پر حملہ، 3 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے، 1 زخمی۔ امن کا دشمن باز نہ آیا، بھارت لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول۔ بزدل فوج کی نکیال اور جنروٹ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، 40 سالہ خاتون شہید، خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی حاجی پیر سیکٹر پر بھی فائرنگ، حوالدار ناصر حسین جام شہادت نوش کر گیا۔ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر گورو اہلوالیہ کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا۔ I know Pakistanis will fight to death for their freedom. So when a nuclear armed country fights to the end, to the death, it has consequences, because this is a potential a disaster which would go way beyond the Indian subcontinent. کشمیریوں کے لیے ہر حد تک جائیں گے، وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ پاک بھارت تصادم کا اختتام ایٹمی جنگ پر ہوگا، جس کے بھیانک نتائج دنیا بھر میں پھیلیں گے۔ وزیر اعظم نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، جوہری جنگ سے بچنے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ آج 40واں دن ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا سماں ہے۔ اس دفعہ یہ محرم کے مہینے میں کھڑے ہم، محرم کے عاشورے کے دن ہندوستان کی فوج نے امام بہرگاہوں پر حملہ کیا۔ مودی مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کر رہا ہے، وادی میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر بھی پابندی ہے۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو اقوام عالم کو مودی کی مکاریوں سے آگاہ کریں گے۔
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया, मामून ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ अवान कहती हैं पाकिस्तान का हर तबका कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कश्मीर काज पे हमने यकजा होना है, इकट्ठे होना है। इस वक्त पाकिस्तान को एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। जुल्म, जबर और रियासती दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर के अवाम बेबसी की तस्वीर बन गए। लॉकडाउन बदस्तूर 41वें रोज भी जारी। वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई। दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता। 11,000 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने भारत पर तिजारती और सफरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रुप्स के चेयरमैन रिचर्ड कॉर्बेट कहते हैं भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। भारत पर कश्मीर में जारी कर्फ्यू हटाने के लिए दबाव डाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब तक LOC की जानिब मार्च न करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़ेर सदारत इजलास भारतीय मज़ालिम के खिलाफ शहर शहर एहतजाज का ऐलान। एहतजाजी तहरीक के लिए वज़ीर इत्तलात की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी। वादी में 40 रोज से ब्लैकआउट है। 80 लाख अफराद घरों में महसूर हैं। आधी रात को घरों पर छापे मारे जाते हैं। लोगों को टॉर्चर किया जाता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम पर बोल उठी। ट्वीट किया कि मकबूजा कश्मीर में 40 रोज से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की आवाज़ को सुने और क़याम अमन में किरदार अदा करें। अदलिया के फैसले पढ़े बगैर तबसरे किए जाते हैं। तारीख दान बताएंगे कि जजेस फैसले करते हुए मयार पर यकीन रखते हैं, तादाद पर नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा ट्रायल अदालतों ने 137 दिनों में 36,000 मुकदमात निपटाए। इमरान खान कोई NRO नहीं मांगेगा, लेकिन दरमियानी नहीं मानेगा। इस वक्त इस मुल्क में 4 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो या जेल के अंदर हैं या जेल जाने के करीब हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म जेल में हैं और 2 जाने वाले हैं। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की घनगरज, कौमी हुकूमत बनने की तरदीद कर दी। कहा कश्मीर के इशू पर चीन और तुर्की की हिमायत हासिल है। सलाउद्दीन कत्ल केस में पुलिस पार्टी को बचाने का इल्जाम। IG पंजाब ने SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान हबीबुल्लाह को ओहदे से हटा दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस जज अरशद मलिक को OSD बना दिया गया। अरशद मलिक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कम्युनिकेशन है। अगर कैप्टन और PCB की जो हायर अथॉरिटी अगर वो कम्युनिकेशन में रहे तो वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। PCB की मर्जी जिसको वो बेहतर समझते हैं उसको वो टेस्ट कप्तान बनाएंगे आगे। कराची की जो कमाता है तो पूरा मुल्क खाता है, लेकिन इससे हासिल सरमाए को इस शहर पर ही नहीं लगाया जाता। शहर कायद के वासियों ने इस बार तब्दीली का साथ दिया, लेकिन तब्दीली के दावेदार भी इस शहर के हालात तब्दील ना कर सके। वादा 162 अरब का, लेकिन जारी सिर्फ 1 अरब 30 करोड़ हुए। कराची ने PTI को मैंडेट दिया। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को सीट दिलाई। 3 वफाकी वज़रा दिए। गवर्नर सिंध दिया, सदर पाकिस्तान भी दिया। बदले में वजीर आजम इमरान खान ने शहर के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। साल गुजर गया लेकिन वजीर आजम का वादा वफा ना हुआ। अब फंड जारी भी किए तो सिर्फ 1 अरब 30 करोड़। दस्तावेजात के मुताबिक
ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए, सखी हसन फ्लाईओवर केडीए चौरंगी के लिए 18 करोड़ रुपए, मंगोपीर निस्टर रोड की तामीर 9 के लिए 43 करोड़ रुपए और फायर फाइटिंग सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कराची के हालात पर कभी कचरा सियासत तो कभी कमेटी का खेल। सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो सब कर रहे हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए कोई भी अमली इक़दामात करता नजर नहीं आ रहा। कमेटी और इजलास नहीं, फंड्स दें। मेयर कराची ने मुतालबा कर दिया, कहा मसाइल के हल के लिए सिंध और वफाक साथ बैठें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने भी 162 अरब रुपए देने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर ज़मान बोले 10 साल में सिंध सरकार को 3,500 अरब रुपए मिल चुके हैं। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में। वहीं आ रहा हूँ, कमेटीज या मीटिंग से काम नहीं चलेगा। अब कराची के लोगों को कमेटियां और मीटिंग्स नहीं चाहिए, ठीक, उनको अपने मसले रिजॉल्व होने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर सीरियसनेस हो दोनों जगह, फेडरल गवर्नमेंट इस कमेटी को छोड़ें, पीएम साहब यहाँ आए, सीएम साहब को लेके बैठे, इस्लामाबाद का फंड आए यहाँ, तो ये मसाइल तो सब सामने हैं और पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। इससे निकलना होगा बड़ों को। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब को लें, मेरे साथ बैठें, मुझे बुला लें, मैं कराची के लिए हर जगह जाने को तैयार हूं। अगर वफाकी हुकूमत सिंध पर या खास तौर पर कराची में पैसे खर्च करना चाहती है, कोई डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए उनको आइन के किसी क्लॉज की, किसी आर्टिकल की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये बजाय इसके कि इस किस्म की बातें करें, ये पैसे खर्च करें कराची के ऊपर। 62 अरब का ऐलान किया, वो पैसे लगाए ना, एक साल में उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। हमें बार बार सिंध की आवाम को ये बात बतानी है कि सूबे सिंध के अंदर चाहे पानी का मामला हो, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे वो सफाई सुथराई का हो, ये सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। इसके लिए इनको पैसा मिलता है एनएसटी के जरिए सालाना। अंदाजन 10 साल में तो 3,500 अरब रुपए इनको मिल ही चुके हैं तरक्याती कामों के लिए। आपके सामने आप देख लें सिंध कहाँ पर है। कराची और उसके मसाइल सियासतदानों हल तो नहीं दे रहे, लेकिन ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। आर्टिकल 149 से उठने वाला तूफान आज भी ना थम सका।